ایک چھوٹے سے گاؤں کے کونے میں، جہاں نہ روشنی تھی نہ آسائش، ایک پرانی جھونپڑی میں ایک غریب آدمی حسن اپنی بیوی سلمہ اور چھوٹی بیٹی عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن آسمان پر چھائے کالے بادل اور پھر اچانک ایسی بارش شروع ہوئی جیسے آسمان اپنا سارا غم زمین پر برسا رہا ہو۔ حسن، دیکھو، چھت پھر ٹپک رہی ہے، پانی اندر آ رہا ہے۔ سلمہ، برتن رکھا تو ہے، کم از کم پانی ایک جگہ جمع ہو جائے گا۔ امی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، بس بارش ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جہاں ایک طرف بڑے بڑے گھروں میں لوگ آرام سے بارش کے مزے لے رہے تھے، وہیں اس چھوٹی سی جھونپڑی میں ہر بوند ایک آزمائش بن چکی تھی۔ واہ بیگم، بارش کے موسم میں گرم گرم چائے اور پکوڑے اور سموسے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مجھے تو بارش بہت زیادہ پسند ہے۔ ہاں بیٹا، بارش تو رحمت ہے، جب اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو بارش بھیجتے ہیں۔ سلمہ، یہ جھونپڑی تو گیلی ہو رہی ہے، اگر یہ گر گئی تو یا پھر ہوا میں اڑ گئی تو؟ حسن، ہمارے پاس تو کہیں اور جانے کی جگہ بھی تو نہیں ہے۔ امی، ابو، کیا یہ واقعی میں گر جائے گی؟ کیا ہمارے پاس یہ بھی نہیں بچے گی؟ عائشہ بیٹا، بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور دعا مانگو۔ بارش جو کسی کے لیے رحمت تھی، وہی بارش ان کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ امی، ابو، کیا ہم ڈوب جائیں گے؟ بارش بہت تیز ہو گئی ہے۔ نہیں بیٹی، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس دن نہ نیند تھی نہ سکون، صرف خوف، سردی اور بے بسی۔ کچھ دیر بعد بارش رک چکی تھی، مگر اپنے پیچھے تباہی چھوڑ گئی تھی۔ حسن، دیکھو، سارا سامان خراب ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، جب جان سلامت ہے تو سب کچھ دوبارہ آ سکتا ہے۔ ابو، بارش اچھی ہوتی ہے یا بری؟ بیٹی، بارش اللہ کی نعمت ہے، مگر جن کے پاس چھت نہ ہو ان کے لیے یہی نعمت آزمائش بن جاتی ہے۔ بارش کے بعد حالات اور بھی خراب ہو گئے، گھر میں نہ اناج بچا نہ امید۔ امی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا۔ بیٹا، آج ہم ایک نیا کھیل کھیلتے ہیں، جو دیر سے کھانا کھائے گا وہ جیتے گا۔ سچ امی؟ پھر تو میں ہی جیتوں گی۔ ماں نے بیٹی کو بہلا تو دیا، مگر خود کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد عائشہ سو گئی۔ حسن، ہم کب تک ایسے گزارا کریں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن میں ہار نہیں مانوں گا۔ حسن، ہم تو گزارا کر لیں گے، لیکن عائشہ چھوٹی بچی ہے، وہ بھوکی نہیں رہ سکتی۔ سلمہ، عائشہ کے اٹھنے تک میں جاتا ہوں، کہیں کام ڈھونڈ کر آتا ہوں۔ حسن بڑی امیدیں لے کر دکانداروں کے پاس جاتا ہے، مگر قسمت جیسے اس سے ناراض تھی۔ اکرم بھائی، کیا مجھے یہاں کام مل سکتا ہے؟ مجھے بہت ضرورت ہے کام کی۔ ارے نہیں، جاؤ یہاں سے بھائی، یہاں کوئی کام نہیں مل سکتا۔ حسن مایوسی کے عالم میں دوسرے دکاندار کے پاس جاتا ہے۔ بھائی، کیا مجھے یہاں کام مل سکتا ہے؟ میری بیٹی کل سے بھوکی ہے۔ ارے جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر، یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ بھائی، مجھے کام مل سکتا ہے، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میری بیٹی بھوکی ہے۔ نہیں، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، چلو جاؤ یہاں سے۔ بھائی پلیز، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، میری بیوی اور بیٹی کل سے بھوکے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ سارا مال پیچھے گودام میں پہنچا دو، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔
आखिरकार हसन को एक काम मिल गया। ये लो आज की तुम्हारी मेहनत की कमाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया साहब, आपने गरीब की मदद की है, अल्लाह आपको बहुत देगा। सलमा, ये लो मैं थोड़े चावल लाया हूँ, इन्हें जल्दी से पका लो, आयशा को भूख लगी है। ठीक है हसन, आप और आयशा बैठकर बातें करें, मैं अभी खाना बनाती हूँ। सलमा ने जल्दी से खाना तैयार किया। सबने मिलकर पेट भरकर चावल खाए। अल्लाह जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया, मुझे भूखा सोने नहीं दिया। आयशा की बात सुनकर हसन और सलमा की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, लेकिन हसन को कहीं काम नहीं मिला। हसन, आज भी घर में कुछ नहीं है, आयशा सुबह से भूखी है। फिक्र न करो सलमा, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा, हमें अल्लाह पर उम्मीद रखनी चाहिए। अम्मी, अबू, मुझे भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? हसन काम ढूंढने शहर निकला। पूरा दिन गुजर गया, मगर हसन को कहीं भी काम ना मिला। मायूसी के आलम में हसन एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा शख्स उसके पास आता है। बेटा, क्यों परेशान हो और तुम रो क्यों रहे हो? बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, बेटी भूखी है, कोई काम भी नहीं मिल रहा। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं, क्या तुम मेहनत करोगे? जी बाबा जी, मैं हर मुश्किल बर्दाश्त कर लूंगा। ये लो एक बीज, इसे अपने घर के पास लगा देना और कभी हिम्मत न हारना। हसन बीज लेकर घर आता है और उसे झोंपड़ी के बाहर मिट्टी में लगा देता है। ये क्या है हसन, ये क्या कर रहे हो? पता नहीं, मगर बाबा जी ने कहा है किस्मत बदल जाएगी। वक्त गुजर गया। चंद दिन बाद वह बीज एक अजीब पौधे में बदल जाता है और उस पर चमकते हुए सुनहरे फल लगते हैं। अबू, देखो, ये कितना खूबसूरत है। ये तो सोना लग रहा है। हसन, ये कैसे मुमकिन है? लगता है ये कोई जादुई पौधा है। अम्मी, अबू, क्या ये सब असली है? पता नहीं बेटा, मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ। मैं अभी शहर जाता हूँ और देखता हूँ क्या ये वाकई में सोना है। हसन वो सुनहरी फल लेकर दुकानदार के पास बेचने जाता है। भाई, मैं ये सोना बेचने आया हूँ, मुझे इसका मुआवजा दे दे। क्या ये तुम्हारा है या फिर कहीं से चोरी किया है? तुम्हारा तो नहीं लग रहा। ये तो बहुत कीमती है। नहीं भाई, ये मेरा है, मुझे जरूरत है पैसों की, इसलिए मैं बेचने आया हूँ। हसन पैसों की गठरी लेकर खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो जाता है। अब्बू, आपको पता है मैंने एक ख्वाब देखा है। हमारा बड़ा घर है और आप मेरे लिए बहुत ज्यादा खिलौने लाए हैं। हाँ बेटी, अब हमारे दिन बदल गए हैं, अब मैं तुम्हें हर आसाइश दूंगा। जादुई पौधे की वजह से हसन की जिंदगी अब बदलने वाली थी। हसन, अब हम आयशा को अच्छा खाना खिला सकते हैं। अम्मी, अबू, मैं अब स्कूल भी पढ़ने जा सकती हूँ ना? हाँ बेटी, अब मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। हसन वो सुनहरी फल बेचता है और देखते देखते उसकी जिंदगी बदलने लगती है। सबसे पहले हसन गांव की सबसे बड़ी हवेली खरीदता है। हसन, सलमा और आयशा इस बड़ी हवेली में बहुत खुशी खुशी रहने लगे। अब वो पेट भरकर आलीशान खाना खाते। दौलत आने के बाद कुछ लम्हों के लिए
हसन बदलने लगा। सुनो, ये काम ठीक से नहीं हुआ, तुम लोग कभी नहीं सीखोगे। हसन, ये तुम हो जो कभी दूसरों का दर्द समझते थे। सलमा, मैं तो बस इन्हें काम करना सिखा रहा हूँ, आखिर मैं इन्हें किस बात कितने पैसे देता हूँ। कभी कभी असल इम्तिहान गुर्बत नहीं बल्कि अमीरी होती है। आखिर ये गरीब झोंपड़ी वाला रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। हसन का पड़ोसी जावेद, जिसे हसन की इतनी अमीरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जावेद हसन का पीछा करता है और सच जानने की कोशिश करता है। हसन ने उस जादुई पौधे को काले कपड़े से ढांक कर रखा था ताकि कोई भी इस राज को मालूम ना कर सके। ये हसन यहाँ क्या कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मैं ये राज जानकर रहूंगा। एक टूटी फूटी झोंपड़ी से ये कैसे इतनी बड़ी हवेली का मालिक बन गया? अरे ये क्या? ये तो कोई जादुई पौधा लगता है और इस पे सोने के फल लगे हैं। हसन का पड़ोसी जावेद लालच में आ जाता है। ये जादुई पौधा तो मैं लेकर रहूंगा और मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हसन सोने का फल लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही जावेद पौधे को काटने लगता है, अचानक तेज रोशनी चमकती है। अरे ये क्या हो रहा है? जावेद डर कर पीछे हो जाता है और वो पौधा अचानक सूख जाता है। सोने के फल गायब हो जाते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? सोने के फल कहाँ गए? जावेद डर कर वहां से भाग जाता है। उस पौधे का जादू खत्म हो जाता है और हसन अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाता है। सलमा, ये क्या हो गया? हमारा रिस्क खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? हम तो दोबारा से गरीब हो गए हैं। हसन, शायद ये हमारी आजमाइश है, हमें ऐसे ही रहना होगा। अम्मी, क्या अब हमें दोबारा भूखे रहना होगा? उसी वक्त वही बाबा जी दोबारा आते हैं। बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और नियत का इम्तिहान था। असल दौलत सोना नहीं बल्कि सब्र और शुक्र है। मैं समझ गया पापा जी, मैं मेहनत जारी रखूंगा और अब मैं अपनी मेहनत से वो सब दोबारा हासिल करूंगा। लेकिन बेटा, जब तुम्हारे पास दौलत आई और तुम में गरूर आ गया, गरूर अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा जी, अब मैं सीख गया हूँ, अब मैं कभी गरूर नहीं करूंगा। हसन दोबारा मेहनत शुरू करता है, मगर इस बार बगैर किसी जादू के। हसन ने सब्जियां बेचनी शुरू कर दी। एक दिन एक भूखी गरीब औरत बाजार आई। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं भूखी हूँ, अल्लाह के नाम पे मेरी मदद कर दो। अम्मा जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ आप लोगों के मांगने का ढंग है। चलो जाओ अब आप यहाँ से। बूढ़ी औरत हसन के पास जाती है। बेटा, मेरी मदद करो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है। अम्मा जी, आप परेशान ना हो, आपको जो चाहिए आप मेरी दुकान से ले सकती हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने एक गरीब की मदद की है, अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। कभी कभी इंसान की किस्मत उसके फैसलों से बदलती है। हसन को उस बूढ़ी औरत की दुआएं लग जाती है और वो एक कामयाब कारोबारी बन जाता है, मगर इस बार अपनी मेहनत से। हसन अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा मगर मजबूत घर बनाता है। अबू, क्या हम वाकई अमीर हो गए हैं? क्या ये सच में हमारा अपना घर है?
हाँ बेटी, मगर असल मेरी दिल की होती है। बस हमें कभी गरूर नहीं करना चाहिए। बेटी, हमने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह ने हमें हमारे सब्र का फल दिया है। अम्मी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन मुझे अब बारिश से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे बारिश अच्छी लगती है। बेटी, हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह हर किसी को अपनी छत दे। अम्मी, अबू, ये देखें, इसमें मैं अपने पैसे जमा कर रही हूँ। मैं उन लोगों की मदद करूँगी जो झोंपड़ी में रहते हैं, और कोई भी बच्चा मेरी तरह बारिश को आजमाइश न समझे, बल्कि रहमत समझे। बेटी, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे और हमेशा दुआ करेंगे कि अल्लाह सबको उनका अपना छोटा मगर मजबूत घर दे और हमेशा अपनी रहमत की बारिश बरसाए। अल्लाह पर यकीन, मेहनत और सब्र इंसान की तकदीर बदल सकते हैं, जबकि लालच हमेशा नुकसान देता है।